Hello, dear students. I hope you all are fine. So, today we are going to discuss about class 10 test series science paper set B. So, today in this session I am going to discuss about physics portion. So, first question of physics, that is question number 13. It is asking near and far point of a young person's normal eye respectively are. So we all know near point is 25 centimeter and far point of a young person is infinity. So option number C is correct. Now we will move to the 14th question. And 14th question is asking for the diagram shown according to the new Cartesian sign convention, the magnification of the image form will have the following specification. So I will check the figure which is given over here. So my object is between F and P. Okay, principal focus and pole. Okay, so if you observe the ray diagram for this one will be, we'll get an image will be virtual and erect, and the size of the image will be greater than the size of the object. It is given in your NCERT book, ray diagram of mirror. So if hi, size of the image, is greater than size of the object, so my magnification will be positive, that is greater than 1. So based upon this, option number B will be correct, that is sign is positive and value more than 1. Now we will move to the next question. Question number 15. Two bulbs of 100 watt and 40 watt are connected in series. The current through the 100-watt bulb is 1 ampere. The current through the 40-watt bulb will be. So I have two bulbs which has a reading of 100 watt and 40 watt. They are connected in series. So we all know in series combination, current across each resistor will be same. So in 100-watt current is 1 ampere. So obviously in 40-watt also current will be 1 ampere only, because both of them are connected in series. So my answer is D, 1 ampere. Question number 16 now. The refractive index of medium A is 1.5 and that of medium B is 1.33. If the speed of light in air is 3 into 10 to the power 8 meter per second, what is the speed of light in medium A and medium B respectively? So one thing is given to me, that is nu A1. It means refractive index of A with respect to air. I have taken air as medium 1 and medium 2 as medium A. So formula for this one will be nu V1 upon VA. V1 means velocity of light in air, VA means velocity of light in medium A. So nu A1 is given to me, that is 1.5. So I will write 1.5 is equals to V1. We know V1 is given to me 3 into 10 to the power 8 divided by VA, velocity of light in medium A. I need to take out. So I will transpose. So I will get VA equals to 3 into 10 to the power 8 upon 1.5. So calculation part will be, answer I will get 2 into 10 to the power 8, okay, meter per second. So I got the answer of velocity of light in medium A as 2 into 10 to the power 8 meter per second. Okay. So now I need to find same for the medium B. Okay. So I will find for medium B also. So nu B1 is given to me, that is 1.33. So formula will be V1 upon VB. Okay.
So new B1 is given to me 1.33 equals to V1 is 3 into 10 to the power 8 divided by VB. So after solving this, I will get the answer of VB as 2.25 into 10 to the power 8 meter per second. So correct option for this one is option number D. That is 2 into 10 to the power 8 meter per second for A and 2.25 into 10 to the power 8 meter per second for B. Okay. So I'll move to the next question. Question number 20 is assertion and reason question. So assertion is given to me. Concave mirrors are used as reflectors in torches, vehicle headlights, and in searchlights. So this is correct. We use concave mirrors in all this like torches, vehicle headlights, and searchlights. I will read the reason now. When object is placed beyond the center of curvature of a concave mirror, the image form is real and inverted. This is also correct. But the reason for the assertion is not a correct explanation. The correct explanation will be the correct explanation of the assertion will be we use concave mirrors. Okay, we use concave mirrors as reflectors in torch vehicle heads and such like, so that we get a powerful powerful parallel parallel beam of light. So this is the correct explanation. Both the statements are correct, but reason is not a correct explanation of assertion. So option number B is correct answer for this question. Now we'll move to the next question, that is 25th question. 25th A. It is asking, state the relation between work, charge and potential difference for an electric circuit. We will solve first A1, then we'll go for B1. So we all know potential difference is a ratio between work done and charge. Okay, so VA minus VB, that is potential difference across A and B, that will be equals to work done, which is denoted by W, and Q, okay, for charge. So my formula is VA minus VB equals to W by Q. Okay, so this is my A1. Now I will move to the B1 now. It is asking, calculate the potential difference between the two terminals of a battery if 100 joule of work is required to transfer 20 coulomb of charge from one terminal of the battery to the other. So what is given to me? Q is given to me 20C, 20 coulomb, and W is given to me 100 joule. So we know the formula. Potential difference V equals to W upon Q. So I just put the value of W as 100 and Q as 20. So 21s are 25s are. So I got the value of potential difference as 5 volt. I hope it is clear. Now we will move for the next question. That is 25th or. It is asking, draw an electric circuit to describe Ohm's law. Label the circuit components used to measure electric current and potential difference. So friends, this is the circuit diagram which we have used in Ohm's law. Okay, we have voltmeter. Okay, we have resistance wire, then ammeter, we have batteries. Okay, we have a plug key. So this is you have to draw. Okay, so I'll move to the next question. Question number 30. I will discuss about the A part first. What is the far point and near point of human eye with normal vision? We have already discussed this question in our MC. So far point will be your infinity and near point will be 25 centimeter. Okay. So this infinity is for far point, and this is for near point. I hope it is clear for all. Okay. Now option number B, 30th B. A student has difficulty in reading the blackboard while sitting in the last row. What could be his defect of vision? Draw a ray diagram to illustrate this defect of vision. So the defect which is here mentioning, it is short
sightedness, or myopia. And the image is, in this case, forms in front of retina. And this is the ray diagram for this question. Okay, so I will move to the next question. Question number 31st. A. Name the material which can be used to make permanent magnet and temporary magnet. Okay, so I will discuss A part first. So material which can be used to make permanent magnet, that are steel and alloys. In alloy we have alnico and nippermag. Okay, so alnico is nothing but the alloy of aluminium, nickel, and cobalt. Okay, and nippermag is the alloy of iron, nickel, aluminium, and titanium. Okay, titanium. Okay, so permanent magnet we use steel and alloys like alnico and nippermag. Then in temporary magnet we use soft iron. Now we will move to the B part. State two ways by which the strength of an electromagnet can be increased. So strength of electromagnet can be increased by: number one, increasing the number of turns per unit length of the solenoid. Number two, increasing the magnitude of the current through the solenoid. So we'll move to the next question now. Question number 32. List in the tabular form three differences between a voltmeter and an ammeter. So difference between ammeter and voltmeter. Ammeter, first point, it measures electric current in a circuit. Voltmeter, first point, it measures the potential difference between 2 points in a circuit. Ammeter, second point, it is connected in series in a circuit. Voltmeter, second point, it is connected in parallel across 2 points in a circuit. Ammeter, third point, it is a low resistance device. Voltmeter, third point, it is high resistance device. So I'll move to the OR question of 32. 32 OR question. An electric bulb of resistance 200 ohm draws a current of 1 ampere. Calculate the power of the bulb, the potential difference at its end, and the energy in kilowatt hour consumed in glowing it for 5 hours. So we all know power of the bulb power is given by I square R. We have I is given to me 1 ampere and resistance is given to me 200 ohm. So that's why we have used the formula of power equals to I square R. So I put the value of I as 1, okay, 1 square, and R value as 200. So after multiplying this, I got 200 watt. Now, we all know power equals to multiplication of voltage and current. So I will get V equals to P by I. So after putting the value of P as 200 and I as 1, I got the potential difference, that is voltage equals to 200 voltage. Okay, 200 volt. Now, energy consumed by bulb in 5 hour in glowing equals to power into time. So power is given to me 200 into time is 5. So I got 1000 watt hour. We all know we need to take out the power in kilowatt hour. So I will convert this into kilowatt hour. So I will divide it by 1000. So I will get 1 kilowatt hour. So I hope this question is clear for all of you. Now we will move for the next question. Question number 36. A. Explain the following terms related to spherical lenses: optical center, aperture, focal length. So first we'll discuss about the optical center. Optical center. The center point of a lens is known as its optical center. It is always lies inside the lens. A light beam passing through the optical center emerges out without any deviation after refraction. This is the definition of optical center. Now we will move for the aperture. Aperture. This is the length of lens through which refraction takes place. I hope you know the meaning of
aperture. If this is my convex lens, so from here to here, this will my aperture, that is M, and this is my aperture where it will means light will refract. So this portion is my aperture. Okay, if I talk about a concave lens, so this part is my aperture. Now I will move for the focal length. Focal length, the distance of the principal focus from an optical center of a spherical lens is called as focal length of the lens. Okay, so now I'll move to the B portion of this 36 question. A converging lens has focal length of 12 centimeter. Calculate at what distance should the object be placed from the lens so that it forms an image at 48 centimeter on the other side of the lens. So whatever given things I will write. So focal length is given to me. Focal length is 12 centimeter. Focal length is 12 centimeter. Why we have taken 12 centimeter plus 12 centimeter? Plus 12 centimeter because we are using converging lens. What is the meaning? Converging lens. If I talk about converging lens means converging lens, that is convex lens. For convex lens, we use the focal length as positive. Okay. Now I will move to the next. Okay, converging lens. Converging lens means convex lens. Okay. For convex lens, focal length is plus 12 centimeter. We always take the focal length as positive. Image distance is given to me. Image distance is given V equals to plus 48 centimeter. Why we have taken 48 centimeter? Because it is saying that on the other side of the okay, on the other side of the just give me one, on the other side of the lens image is forming. So this side, if we'll use this side, so obviously my V will be plus 48. Now we will use lens formula, that is 1 by f equals to 1 by v minus 1 by u. Okay, so I'll put the value of f as plus 12 and v as plus 48. So after calculating, I will get the value of u as minus 16 centimeter. So the distance of object from the lens is 16 centimeter. Now I will move to the next question. Question number 39, case study based question. When a beam of light passes through a colloid, the colloidal particles present in the solution do not allow the beam to completely pass through. The light collides with the colloidal particles and is scattered. It deviates from its normal trajectory, which is a straight line. This scattering makes the path of light beam visible as illustrated below. This is the illustration. Figure is given to me. Now, first question of 39. What is a Tyndall effect? Answer: the Tyndall effect is scattering of light by particles in a colloid or in a very fine suspension. The fine particles present in a true solution or a colloid scatter the beam of light, thereby making the path of light visible. So this is nothing but your Tyndall effect. Now I will move to the next question, 39b. Question is, which wavelength of light is scattered by bigger sized particle present in atmosphere? Answer: the scattering of light and the color of scattered light depends upon the size of particles. Larger particles scatter longer wavelength like red and orange. Next question, 39c. A star appears twinkling in the sky. Why? Answer: when the starlight enters the Earth's atmosphere, where its refractive index is increasing gradually, the starlight is bent towards the normal. Moreover, this light entering our eyes fluctuates randomly with time as the physical condition of our atmosphere is changing continuously. So this is the answer of 39C. I will move to the OR question. 39C OR question. Which color of light scatters maximum due to atmosphere? Explain with example. Answer: the blue color of sky is due to the scattering of light by the large number of molecules present in the Earth's atmosphere.
As the size of the scatterer as the size of the scatterer is much smaller than the wavelength of light, light of smaller wavelength is scattered the most. If the earth had no atmosphere, the sky would appear black in the day. Time has no color of If the earth had no atmosphere, the sky would appear black in the daytime as no color of sunlight would be scattered then. So this is the answer of 39C or question. डियर स्टूडेंट्स, हम क्लास 10 का टेस्ट सीरीज का सेट बी डिस्कस कर रहे हैं। अब हम केमिस्ट्री सेक्शन डिस्कस करेंगे बच्चों। अब सेक्शन ए में पहला ही क्वेश्चन जो है वो केमिस्ट्री का है। विच आर द ऑप्शन इन द गिवन टेबल आर करेक्ट। तो आपको करेक्ट ऑप्शन देखना है। ऑरेंज ऑक्सैलिक एसिड नहीं हो सकता क्योंकि ऑरेंज का साइट्रिक एसिड चाहिए। सेकंड, sour milk and lactic acid, this is the correct one. And sting and methanoic acid, again this is the correct one. अब tamarind और acetic acid नहीं हो सकता, okay, यानी ऑप्शन 2 and 3 is correct, यानी सी वाला जो ऑप्शन है वो यहाँ पे करेक्ट है, ओके। अब सेकंड, alloy are homogeneous mixture, metal and non-metal. Which among the following alloy contain non-metal is one of its constituent। तो बच्चों ब्रास में तो दोनों मेटल है, ब्रॉन्ज में भी कॉपर और दूसरा मेटल होता है। एमेलगम जो है इज अलॉय ऑफ मर्क्यूरी, ओके, समझ में। और उसके साथ भी एक तो सोडियम होता है, नहीं तो गोल्ड होता है एमेलगम। अब ये जो स्टील है ना, इसमें 99%, ओके, 0.9% जो है वो आयरन होता है और 0.1% इसमें कार्बन होता है, ओके। तो स्टील इज अ करेक्ट आंसर। अब थर्ड देखिए बच्चों, द पेयर विच विल शोज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब पहला देखिए, NaCl सॉल्यूशन इन द कॉपर मेटल। तो कॉपर सोडियम को डिस्प्लेस नहीं कर सकता क्योंकि कॉपर की रिएक्टिविटी कम है, तो ये नहीं होगा। सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन एंड कॉपर मेटल, तो ये होगा बच्चों क्योंकि कॉपर सिल्वर को डिस्प्लेस करेगा एंड दिस ऑप्शन इज करेक्ट, ओके। अब थर्ड देखते हैं बच्चों कि एल्यूमिनियम सल्फेट एंड मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव देन एल्यूमिनियम, तो ये डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, ओके। और थर्ड अगर देखेंगे तो जिंक सल्फेट सॉल्यूशन विद द आयरन। तो आयरन जिंक को नहीं कर सकता है क्योंकि उसकी रिएक्टिविटी जिंक की ज्यादा है, ओके। तो यहाँ पे ऑप्शन 2 and 3, तो यहाँ पे बी ऑप्शन इज करेक्ट। फोर देखिए बच्चों, कैल्शियम फॉस्फेट इज प्रेजेंट इन द टूथ एनामल, ओके। तो हमारे टूथ एनामल में ये कैल्शियम फॉस्फेट होता है, दैट इज अ Ca3PO4/2, ओके। अब बच्चों कैल्शियम फॉस्फेट इज अ बेसिक सॉल्ट, ओके, क्योंकि सारे मेटालिक सॉल्ट ये बेसिक सॉल्ट होते हैं, ओके। तो दैट्स व्हाई ऑप्शन ए इज करेक्ट, ओके। क्योंकि इसका जो सॉल्यूशन बनेगा उसमें रेड लिटमस पेपर जो है ब्लू होता है, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस, ओके। अब फर्स्ट, रिएक्शन विथ वाटर एंड क्विक लाइन, नो डाउट बच्चों दिस इज एक्सोथर्मिक क्योंकि इसमें हीट लिबरेट होती है और वो जो पॉट है वो हॉट हो जाता है। सेकंड, डाइल्यूशन ऑफ एन एसिड, अगेन इट इज एक्सोथर्मिक, ओके, क्योंकि जब एसिड का डाइल्यूशन करते हैं तो इसमें भी हीट लिबरेट होती है, ओके। इवेपोरेशन ऑफ वाटर इज एंडोथर्मिक, यहाँ पे हीट एब्सॉर्ब होती है, ओके। एंड सब्लिमेशन ऑफ कैम्फर, तो यहाँ पे भी हीट एब्सॉर्ब होता है। तो ऑप्शन 1 and 2 इज करेक्ट, दैट इज अ ए, ओके। अब 6 देखिए बच्चों, द करेक्ट इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल।
तो जो वाटर मॉलिक्यूल है बच्चों, इसमें दो सिंगल बॉन्ड होता है। ओके, ये ऐसे वाटर का स्ट्रक्चर होता है और इसके पास ओके चार वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, बराबर। ओके, तो ये स्ट्रक्चर करेक्ट है। तो ये स्ट्रक्चर कहाँ दिख रहा है हमको? ओके, देखो बच्चों, यहाँ पे ऑप्शंस अगर देखेंगे तो ये लग रहा है, बट यहाँ पे हाइड्रोजन का नहीं दिया है। ओके, ऑक्सीजन का ही इलेक्ट्रॉन शो किया है। ओके, बी ऑप्शन में देखो बच्चों, इधर बराबर है बट यहाँ पे एक ही दिया है, यहाँ पे चाहिए। अब ये ऑप्शन देखिए सी, यहाँ पे भी पेयर्ड है, यहाँ पे भी पेयर्ड है, ये सिंगल बॉन्ड और ये इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया। यहाँ पे है, ये पेयर दिखाए है बट इसके वैलेंस दिखाए नहीं, इसीलिए करेक्ट आंसर इज सी। 7 देखिए बच्चों, what happens when the dilute hydrochloric acid is added in the iron pellets? तो आयरन यानी Fe, अगर इसमें हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालते हैं तो इट फॉर्म a FeCl2, that is a iron chloride, and hydrogen gas is liberated out. Okay, तो ऑप्शन यही होगा कि आयरन क्लोराइड है, हाइड्रोजन गैस। तो ऑप्शन ए देखिए बच्चों, हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड, तो बाकी देखने की जरूरत ही नहीं, पहला ऑप्शन ही क्लियर है। ओके, क्योंकि बाकी का क्लोरीन गैस तो नहीं लिबरेट होता है। ओके, क्योंकि आयरन जो है वो किसको डिस्प्लेस करेगा? हाइड्रोजन को। ओके, नो रिएक्शन, तो ये हो ही नहीं सकता बच्चों। ओके, अब 17 देखिए बच्चों, सम मेटल ऑक्साइड such as aluminium oxide, zinc oxide show the both acidic as well as basic behavior. करेक्ट है बच्चों, क्योंकि ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, तो assertion इज ट्रू। अब ये रीजन बोल रहा है एसिडिक और बेसिक बिहेवियर डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर ऑफ ऑक्साइड। तो बच्चों, हमने किताब में कहीं ये पढ़ा ही नहीं है कि भाई ऑक्साइड के टेम्परेचर पे भाई उसका एसिडिक और बेसिक, बिल्कुल नहीं। हम ये देखते हैं कि वो किसके साथ रिएक्ट हो रहा है। अगर वो एसिड के साथ रिएक्ट हो रहा है तो वो बेसिक है। ओके, और अगर वो बेस के साथ रिएक्ट हो रहा है तो वो एसिडिक है। ओके, तो रीजन पूरा फॉल्स है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। सेक्शन बी देखिए बच्चों, 2 मार्क्स क्वेश्चन है, इसमें ए को 1 है और बी को 1 है। क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट आर हीटेड इन अ टेस्ट ट्यूब फॉर सम टाइम, व्हाट इज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट क्रिस्टल? ओके, अब यहाँ पे ऑप्शन है बिफोर हीटिंग एंड आफ्टर हीटिंग। तो कॉपर सल्फेट है बच्चों CuSO4, ओके, 5H2O। ओके, और इसका क्रिस्टल का कलर कौन सा होता है? ब्लू। इट इज कॉल्ड एज द ब्लू विट्रियन। बट जब हम इसको हीट करते हैं तो इसमें से ये निकल जाता है। ओके, और हीटिंग के बाद में ये H2O बाहर निकलने के बाद, ओके, आफ्टर हीटिंग इट टर्न्स इनटू विच कलर? व्हाइट, और ये अमोर्फस पाउडर हो जाता है। ओके, तो बिफोर हीटिंग इट इज ब्लू एंड आफ्टर हीटिंग इट इज व्हाइट। व्हाट इज द सोर्स ऑफ लिक्विड ड्रॉपलेट seen on the inner surface of the side of the test tube during the heating? तो बच्चों, ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। कॉपर सल्फेट कंटेन द 5 वाटर मॉलिक्यूल। तो जब हम इसको हीट करते हैं एट 250 डिग्री सेल्सियस, ओके, तो ये वाटर जो है इसके ड्रॉपलेट्स आपको टेस्ट ट्यूब पे दिखाई देंगे। ओके, तो दिस इज एंड इट गेट कंडेंस, वो कंडेंस हो जाते हैं। ओके, और इसीलिए ये लिक्विड ड्रॉपलेट दिखते हैं। तो दिस लिक्विड ड्रॉपलेट इज अबाउट व्हाट? वाटर। तो ये इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड ड्रॉपलेट रहते हैं। 21 का और, व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ द कंपाउंड CaOCl2? तो दिस इज नथिंग बट द ब्लीचिंग पाउडर। ओके, इसी को क्लोराइड ऑफ लाइम भी कहते हैं बच्चों। आइदर आप कॉमन नेम, अब उन्होंने कॉमन नेम ही पूछा है। ओके,
तो कॉमन नेम इज अ ब्लीचिंग पाउडर और इसका साइंटिफिक नेम है क्लोराइड ऑफ लाइम। ओके, और इसका बी देखो बच्चों, नेम द सब्सटेंस विच ऑन ट्रीटमेंट विद द क्लोरीन इल्स अ ब्लीचिंग पाउडर। ओके, तो बहुत सिंपल है। ब्लीचिंग पाउडर का जब प्रिपरेशन करते हैं तो हम क्या करते हैं बच्चों, जो लाइम वाटर है या ड्राई स्लेक लाइम जो है, ओके, उससे हम कौन सा गैस पास करते हैं, के क्लोरीन गैस। तो हमको यहाँ पे ब्लीचिंग पाउडर मिलता है। ओके, तो आपको यहाँ पे इक्वेशन लिखना पड़ेगा और नेम ऑन द सब्सटेंस विच ऑन ट्रीटमेंट विथ क्लोरीन। तो नेम ऑफ द सब्सटेंस इज व्हाट, ड्राई स्लेक लाइम। ओके, समझ में आया? तो आपने सिर्फ नाम लिखा तो भी मार्क्स मिलेगा। ओके, बट इक्वेशन अगर लिखते हैं ना बच्चों तो थोड़ा सा वो दिखने को भी अच्छा दिखता है और आपका सोर्स भी पता हो जाता है। ओके, अब सेक्शन सी बच्चों, दिस इज अ 3 मार्क्स क्वेश्चन। डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी। कुछ बच्चे फिजिकल प्रॉपर्टी लिख के आ जाते हैं, बट यहां पे केमिकल प्रॉपर्टीज है बच्चों। ओके, तो सबसे पहला प्रॉपर्टी नेचर ऑफ ऑक्साइड। ओके, तो मेटल जो है, ओके, इट ऑक्साइड ऑफ मेटल आर आइदर बेसिक इन नेचर, मोस्ट ऑफ द मेटालिक ऑक्साइड आर बेसिक, बट बच्चों एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड ये एम्फोटेरिक भी होते हैं। ओके, बट नॉन मेटल अगर देखेंगे बच्चों तो दे आर एसिडिक। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एसिडिक ऑक्साइड फॉर्म करता है, बट कार्बन मोनोऑक्साइड ये न्यूट्रल ऑक्साइड फॉर्म करता है। ओके, अब दैट इज अ फॉर्मेशन ऑफ आयन। तो जनरली मेटल ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव है बिकॉज दे हैव एबिलिटी टू लूज द इलेक्ट्रॉन। वो इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं to complete their what octet or duplet। ओके, बट नॉन मेटल ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। ओके, अब जो मेटल है ये कोई भी एसिड के साथ रिएक्ट हो जाते हैं। ओके, और जब इसका रिएक्शन होता है तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट होता है बच्चों। बट नॉन मेटल जो है वो हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। तो जनरली नॉन मेटल जो है दे डू नॉट रिएक्ट विथ अ व्हाट, अ डाइल्यूट एसिड, बट मेटल रिएक्ट विथ डाइल्यूट एसिड एंड हाइड्रोजन गैस लिबरेटेड। अब मेटल्स जो है ये वाटर के साथ रिएक्ट होते हैं बच्चों, और जब भी मेटल वाटर के साथ रिएक्ट होते हैं तो दे प्रोड्यूसिंग देयर ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड, एंड इन दिस द हाइड्रोजन गैस लिबरेटेड आउट। ओके, बट यहां पे नॉन मेटल जो है जनरली वाटर और इसके साथ रिएक्ट नहीं होते हैं। ओके, बिकॉज नॉन मेटल्स जो है ना दे कैनॉट गिव द इलेक्ट्रॉन टू द हाइड्रोजन आयन, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन दे नहीं सकते। नॉन मेटल की टेंडेंसी होती है वो इलेक्ट्रॉन लेते हैं, वो दे नहीं सकते। ओके, तो इसीलिए जनरली ये रिएक्शंस यहाँ पे नहीं होते हैं नॉन मेटल्स में। तो दिस वन इज द 3 मार्क्स क्वेश्चन। आपने इसमें से 3 कोई भी प्रॉपर्टी लिख दिया तो आपको 3 मार्क्स मिलेंगे बच्चों। बट डिफरेंस बिटवीन में इधर का भी पॉइंट सही होना चाहिए और इधर का भी सही होना चाहिए तो 1 मार्क मिलता है। इधर का भी सही होगा, इधर का भी सही होगा तो 1 मार्क मिलेगा। इधर का भी सही है और इधर का भी सही है तो 1 मार्क मिलेगा। बट इधर का गलत है और इधर का सही है तो 0 मिलेगा। ओके, अब 28 देखो बच्चों, व्हाट विल बी द एक्शन ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस ऑन लिटमस पेपर। ओके, तो अच्छे सीक्वेंस से लिखेंगे बच्चों। ड्राई HCl गैस, अगर HCl गैस ड्राई है तो देर इज नो चेंज बिकॉज आयन ही फॉर्म नहीं होगा, तो लिटमस चेंज ही नहीं होगा। ओके, अब मॉइस्ट अमोनिया गैस, अब अमोनिया गैस बच्चों ये बेसिक नेचर का है और ये मॉइस्ट है, तो मॉइस्ट है तो आयन प्रोड्यूस होंगे, इसीलिए रेड लिटमस पेपर क्या होगा, ब्लू। अब लेमन जूस, नो डाउट इट कंटेन द एसिड,
That's why the blue litmus paper turns what? Red. अब कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक, अब बच्चों सॉफ्ट ड्रिंक जो होता है ना, इसमें आप देखेंगे ऐसे बबल्स दिखते हैं, तो देयर इज अ कार्बन डाइऑक्साइड, बट इट फॉर्म अ विच एसिड? कार्बोनिक एसिड, उसमें कार्बोनिक एसिड होता है। ओके, और इसी वजह से सॉफ्ट ड्रिंक में ब्लू लिटमस पेपर क्या होगा? रेड। अब कर्ड, कर्ड जो है, ओके, ये खट्टा होता है क्योंकि लैक्टिक एसिड है, इसीलिए वो एसिड है। ब्लू लिटमस रेड। ओके, एंड सोप सॉल्यूशन बच्चों, दिमाग में पक्का रखना कि सोप सॉल्यूशन ये बेसिक होता है। ओके, एंड दैट्स व्हाई रेड लिटमस पेपर टर्न्स इनटू व्हाट? ब्लू। तो ये आपको ईच कैरी हाफ मार्क्स वाला है। ओके, जो करेक्ट है उसको ऐसे हाफ हाफ मार्क्स मिलते जाएंगे। अब डी सेक्शन देखो बच्चों, लॉन्ग 5 मार्क्स। अब ए और बी दोनों अलग है। यहां पे बच्चों ए को 3 मार्क है और बी को 2 मार्क है। रीजन है कार्बन कंपाउंड हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो हमने पढ़ा है कि जो कार्बन कंपाउंड होते हैं इसमें लो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इतना स्ट्रांग नहीं होता है, तो दैट्स व्हाई दे कैन ब्रेक इजीली, एंड दैट्स व्हाई दे हैव द लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। कार्बन कंपाउंड डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि कार्बन कंपाउंड, ओके, ये कोवैलेंट कंपाउंड है एंड इसमें आयन ही नहीं प्रोड्यूस होते हैं, दे डू नॉट प्रोड्यूस द आयन। और आयन अगर प्रोड्यूस नहीं होंगे तो वो फ्लो नहीं होंगे। ओके, क्योंकि आयंस ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ओके, तो इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी। एंड कार्बन कैन ओनली फॉर्म कोवैलेंट कंपाउंड, क्योंकि कार्बन में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, और हमने पढ़ा है बच्चों कि कार्बन कैनॉट गेन और लूज द इलेक्ट्रॉन। उसकी स्टेबिलिटी को लेके हमने पढ़ा है कि कार्बन ना तो कैटायन फॉर्म कर सकता है और ना ही एनायन फॉर्म कर सकता है। ओके, और इसी वजह से कार्बन इलेक्ट्रॉन को शेयर कर सकता है। ये एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा तो सिंगल बॉन्ड, 2 पेयर सिलेक्ट शेयर करेगा तो डबल बॉन्ड, और 3 करेगा तो ट्रिपल बॉन्ड। इसी वजह से, ओके, क्योंकि उसको इलेक्ट्रॉन को अगर गेन भी करना है या लूज भी करना है तो उसको एनर्जी की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। और हमने पढ़ा है बच्चों कि कार्बन में सिर्फ 2 ही शेल है, के और एल। ओके, के में 2 है और एल में 4 है, तो लो एनर्जी शेल होने के वजह से कार्बन ये सिर्फ कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है। ओके, अब सेकंड बी देखो, व्हाट इज होमोलॉगस सीरीज। यहां बच्चों आपको डेफिनेशन लिखना है। Find the difference in the molecular mass between the two consecutive member of the homologous series. तो molecular mass का difference 14 Dalton. Okay. State how in the homologous series the following property. तो बच्चों यहाँ पे 1 मार्क मिलेगा, और यहाँ पे आपको मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट और केमिकल प्रॉपर्टी। तो बच्चों मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इज डिपेंड अपॉन मॉलिक्यूलर मास। ओके, तो यहां पे ध्यान दो कि मेल्टिंग एट, यानी देखो होमोलॉगस सीरीज का डेफिनेशन लिखा। ओके, और यहां पे आपको मार्क्स मिल गए, और ये CH2 तो यहाँ 1 मार्क मिल गया, और यहाँ पे आपको हाफ हाफ मिलेगा। ओके, तो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस एज द मॉलिक्यूलर मास इंक्रीजेस, because the physical property depend upon the atomic or molecular mass, but the chemical properties are remain same। ओके, क्यों रिमेन सेम रहेगा? क्योंकि उसका फंक्शनल ग्रुप सेम है, उसका जनरल फॉर्मूला सेम है। ओके, इसीलिए केमिकल प्रॉपर्टीज सेम रहती है, बट द फिजिकल प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट। इसका और बहुत इजी था, विद द हेल्प ऑफ डायग्राम एक्सप्लेन द क्लीजिंग एक्शन ऑफ सोप। तो बच्चों आपको डायग्राम निकालना है, यानी ये बीच में डर्ट, ओके,
ये आपको इस तरह से ये जो डायग्राम हमने पढ़ा है तो ये आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। ओके, ये हाइड्रोपोलिक हाइड्रोफोबिक वगैरह जो है इसको ऐसा बताना पड़ेगा और आपको ये क्लेजिंग एक्शन जो है उसको एक्सप्लेन करना है। ओके, कि हाउ दिस डर्ट इज रिमूव। तो बच्चों इसको दो ही मार्क है, एक मार्क डायग्राम को है और एक मार्क एक्सप्लेनेशन को है। ओके, अब इसका मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ द पेपर डायमंड एंड क्लॉथ, इट फॉर्म द कोवैलेंट बॉन्ड विथ इटसेल्फ एंड अदर एलिमेंट। तो बहुत इजी है बच्चों। ओके, अब यहाँ पे इसको 3 मार्क है। आइडेंटिफाई द एलिमेंट कार्बन, यहाँ पे हाफ मार्क मिलेगा। राइट डाउन द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ इट्स ऑक्साइड, यानी आपको कार्बन डाइऑक्साइड का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। ओके, समझ में आया? यानी कार्बन डाइऑक्साइड का बनाएंगे तो कार्बन ऑक्सीजन। ओके, अब कार्बन यहाँ पे ये शेयर करेगा। ओके, आप इसको डॉट से भी बना सकते हैं या क्रॉस से भी बना सकते हैं। ओके, अब ऑक्सीजन के पास तो 6 थे, 6 में से 2 दे दिए। ओके, बचे कितने? 4। तो ये रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। ओके, तो इस तरह से इसका इलेक्ट्रॉन डॉट क्रॉस स्ट्रक्चर आएगा। ओके, अब यहाँ पे और है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन एंड इथेन। ओके, तो इसको भी आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। देखो ये क्लीजिंग एक्शन का है बच्चों, ये 2 मार्क के लिए। ओके, और 3 मार्क के लिए ओके आपको इसको आइडेंटिफाई करना है। ओके, ये लिखना है। ओके, तो यहाँ पे 1 मार्क हो जाएगा। ओके, और ये जो है ये 1 1 मार्क के है। ओके, तो इस तरह से मीथेन का स्ट्रक्चर, इस तरह से इथेन का स्ट्रक्चर बनता है। तो ये आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। ओके, समझ में? तो इस तरह से स्ट्रक्चर बनते हैं तो आपको यहाँ पे 3 मार्क्स मिलेंगे। थोड़ा लेंदी है बट इजी है। अब सेक्शन ई बच्चों, केस स्टडी। In the combination reaction, 2 or more substances to form a single, that is a combination reaction. A displaces, उसको displacement reaction. Two different atom, double displacement, उसी को हम precipitation reaction भी कहते हैं। ओके, जिसमें insoluble salt प्रोड्यूस होता है। What is the difference between the following two type of reaction? देखो बच्चों, पहला जो रिएक्शन है ये कौन सा है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दिखाई देता है, ये प्लस ये निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव। ओके, देयर इज एक्सचेंज ऑफ आयन। ओके, और ये अगर देखेंगे तो मैग्नीशियम डिस्प्लेसेस द हाइड्रोजन, तो दिस इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो पहला वाला डबल डिस्प्लेसमेंट है और दूसरा वाला दैट इज अ सिंगल डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब इसका बी, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज आल्सो नोन एज द प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, क्योंकि डबल डिस्प्लेसमेंट में एक प्रोडक्ट जो है ये इनसोल्यूबल होता है। ओके, विच इज सेपरेट आउट एज अ सॉलिड, इसलिए हम इसको प्रेसिपिटेट बोलते हैं। यानी अगर आप टेस्ट ट्यूब में देखेंगे तो बॉटम में जो मिलता है वो पीपीटी यानी प्रेसिपिटेट, और ये जो मिलता है ये सॉल्यूशन मिलता है। तो एक प्रोडक्ट बॉटम में मिलता है और एक ऐसा एक्वस मिलता है। ओके, इसीलिए हम इसको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। ओके, तो जो व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट या येलो कलर का प्रेसिपिटेट या ऑरेंज कलर का प्रेसिपिटेट ऐसा मिलता है। अब सिल्वर स्पून is kept immersed in an aqueous copper sulfate solution. What change will takes place? तो बच्चों नो चेंज, बट इतना लिखेंगे तो 1 मार्क मिलेगा, क्योंकि यहाँ रीजन लिखना पड़ेगा कि सिल्वर इज लेस रिएक्टिव देन कॉपर, इसीलिए सिल्वर कॉपर को डिस्प्लेस नहीं कर पाता है। दैट्स व्हाई देयर इज नो रिएक्शन, इसलिए सी ये 2 मार्क का है यहाँ पे। इसका और देखो बच्चों, बिलो आर द गिवन 2 रिएक्शन, 2 रिएक्शन यहाँ दिए, which is a combination reaction and which is a displacement. ओके, तो इसका एक्सप्लेनेशन भी देना है। तो आप यहाँ देखेंगे बच्चों कि ये वाला जो है ये तो कॉम्बिनेशन है,
बट ये वाला रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट है, ये इधर नहीं जाता है। ये क्लोरीन किसको डिस्प्लेस करता है? ब्रोमीन को, इसलिए KCl और Br2 फॉर्म हो रहा है। ओके, तो पहला वाला डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है और दूसरा वाला कॉम्बिनेशन है। इतना लिखेंगे तो 1 मार्क। ओके, बट जब इसका रीजन लिखेंगे कि क्लोरीन डिस्प्लेस द ब्रोमाइन एंड हियर इज, तो और दूसरा जो है कि दोनों कंबाइन होके एक ही प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है, तो इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे बच्चों। तो दिस इज ऑल अबाउट द व्हाट केमिस्ट्री। ओके, तो बच्चों केस स्टडी को सॉल्व करते समय दिमाग में ये रखना कि अगर दिया नहीं है तो सी वाला जो है ये 2 मार्क होता है और ए और बी ये 1-1 मार्क का होता है, क्योंकि पूरा केस स्टडी ये 4 मार्क का होता है बच्चों। ओके, थैंक यू। डियर स्टूडेंट्स, हम क्लास 10th का टेस्ट सीरीज का सेट बी सॉल्व कर रहे हैं। तो इसका पहले हम बायोलॉजी सेक्शन लेके बच्चों देखो, क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट इज द करेक्ट डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। अब ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स का करेक्ट फ्लो बताना है। तो बच्चों हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्स कैरिड बाय द डेंड्राइट्स, ओके, देन द सेल बॉडी, देन एक्सॉन एंड एक्सोनल एंडिंग। तो ए ऑप्शन में गलत डायरेक्शन है। बी ऑप्शन देखिए बच्चों, दो न्यूरॉन एक दूसरे से कनेक्टेड है, बट इसका भी डायरेक्शन रॉन्ग है। सी ऑप्शन देखिए बच्चों, यहां से डेंड्राइट ने रिसीव किया, सेल बॉडी की तरफ आया, ये एक्सॉन नर्व एंडिंग, बीच में सिनेप्स आएगा, यहां से अगेन डेंड्राइट, ये यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, डी तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ओके, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। 9 देखो बच्चों, दिस एक्सपेरिमेंट हियर इज द लाइव वाटर टर्न्स मिल्की, यानी यहां से ही हम ये हो जाता है कि ये ऐसा एक्सपेरिमेंट है कि जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड इज इसेंशियल फॉर द फोटोसिंथेसिस वाला है। ओके, अब यहां पूछा है कि इसका मतलब क्या है। तो बच्चों ऑप्शन ए पे अगर जाते हैं तो प्रेजेंस ऑफ KOH, अगर KOH प्रेजेंट होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट ही नहीं होगा। प्रेजेंस ऑफ लाइम, लाइम तो यहां होता ही नहीं है, ये तो ये भी ऑप्शन नहीं, ये भी नहीं। अब एब्सेंस ऑफ KOH, यस, अगर यहाँ KOH नहीं है, क्योंकि KOH इज अ गुड एब्सॉर्बेंट, अगर KOH नहीं है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिबरेट होगा और इसके वजह से ये लाइम वाटर क्या होगा? मिल्की। तो देयरफॉर ऑप्शन सी इज करेक्ट। यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन 10 है बच्चों, इन द गिवन फिगर द बर्डिंग इन ईस्ट, ओके, यहां दिया है, आपको इसका लेबलिंग्स पहचानना है। तो बच्चों बी जो है 100% बर्ड है, ओके, और सी जो है यहां पे ये ईस्ट है, ओके, और ए ये जो है दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ द बर्ड, और डी जो है दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ द पेरेंट बॉडी। तो ऑप्शन ए जो है इस मींस हियर इज द ए इज द न्यूक्लियस ऑफ द बर्ड, बी इज अ बर्ड, हियर इज द सी इज अ ईस्ट एंड डी is nothing but the what? Nucleus. तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब 11 देखिए बच्चों, टू पिंक कलर फ्लावर ऑन क्रॉसिंग रिजल्टेंट इनटू 1:1। अब 1:2:1 ये रेशो है, ओके। द नेचर ऑफ क्रॉस, तो बच्चों 100% ये F2 जनरेशन है, और F2 जनरेशन में क्या होता है? दैट इज अ सेल्फ पॉलिनेशन, ओके, क्योंकि हम यहां पे F1 इंटू F1 करते हैं तो हमको F2 मिलता है,
That's why option B is correct. That is a self pollination. यहां पे 12 देखिए बच्चों. A leaf is boiled in alcohol before using the what? Iodine. तो बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है. क्लोरोफिल इज इसेंशियल फॉर द फोटोसिंथेसिस. तो इसमें ये जो लीफ को बॉईल किया जाता है अल्कोहल में, करीबन 30 मिनट तक इसको बॉईल करना पड़ता है. तो टू डिसॉल्व द व्हाट? क्लोरोफिल. क्योंकि क्लोरोफिल को जब तक हम डिसॉल्व नहीं करेंगे तब तक हमें पता नहीं चलेगा कि कौन से पार्ट में क्लोरोफिल था और कौन से पार्ट में क्लोरोफिल नहीं है. ओके. तो आप देखेंगे जैसे ही हम आयोडीन सॉल्यूशन डालते हैं तो जिस पार्ट में क्लोरोफिल है वो ब्लू ब्लैक हो जाता है. तो इस एक्सपेरिमेंट का मेन ये है कि यहाँ का क्लोरोफिल जो है वो डिसॉल्व करना पड़ता है. 18th वाला assertion and reason. The color of blood is red. This assertion is correct and it is due to oxidation of hemoglobin with oxygen. बच्चों रीजन भी करेक्ट है and reason is a correct explanation of assertion. That's why option A is correct. 19th अगर देखेंगे तो sperm carry Y chromosome, fertilize egg or ovum having X chromosome. तो assertion is 100% correct. Reason देखो बच्चों, this is because of the offspring will have XX combination of the sex chromosome. बिल्कुल नहीं हो सकता. अगर Y क्रोमोसोम X के साथ कंबाइन होगा तो XY कॉम्बिनेशन प्रोड्यूस होगा. यानी रीजन ये फॉल्स है. ओके. और असर्शन ट्रू है, इसलिए ऑप्शन सी इज करेक्ट. अब बच्चों ये 2 मार्क्स क्वेश्चन. अब पहला ही गिव रीजन है कि डाइजेशन बिगिन विद द माउथ. ओके. तो बच्चों फर्स्ट पॉइंट में ही आना चाहिए कि माउथ में क्या प्रेजेंट होते हैं? टीथ. एंड दिस टीथ परफॉर्म द मैस्टिकेशन. इसी को हम फिजिकल डाइजेशन बोलते हैं. और हमारे माउथ में कौन सा ग्लैंड होता है? सलाइवरी ग्लैंड. और वो सलाइवा सिक्रेट करते हैं. उसमें सलाइवरी अमाइलेज नामक एंजाइम होता है जो केमिकल डाइजेशन करता है. ओके. तो दैट्स व्हाई बोथ द डाइजेशन perform or start by the mouth. That's why we says that the digestion begin with the mouth. Okay. अब क्वेश्चन नंबर 23 देखो बच्चों. You are advised to use eco-friendly appliances. Okay. Like a refrigerator, air conditioner. अब आपको रीजन से एक्सप्लेन करना है हाउ दिस डिवाइसेस आर कॉजिंग हार्म टू एनवायरमेंट. एनवायरमेंट को हार्म कैसे कर रहे हैं? तो बच्चों ये एसी और रेफ्रिजरेटर से सीएफसी बाहर निकलता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन. ओके. जो ओजोन को तो डिप्लीशन करता ही है बट ये ग्रीन हाउस गैस भी है बच्चों. ओके. जिसके वजह से ग्लोबल वार्मिंग का भी इफेक्ट होता है. ओके. और जनरली हियर इज दे कंज्यूम इलेक्ट्रिसिटी. और इलेक्ट्रिसिटी हमारे यहाँ फॉसिल फ्यूल से आता है. तो देयर इज अ डिप्लीशन ऑफ द फॉसिल फ्यूल. ओके. तो दैट्स व्हाई ड्यू टू दिस टू रीजन वी एडवाइज यूज अ इको फ्रेंडली अप्लायंसेस. तो आजकल मार्केट में 5 स्टार 7 स्टार्स वाले जो अप्लायंसेस आते हैं तो वो इको फ्रेंडली होते हैं. गिव टू डिफरेंस बिटवीन क्रेनियल नर्व एंड स्पाइनल नर्व. ओके. बच्चों जब टू डिफरेंस बोला है तो आपको दो ही पॉइंट लिखने हैं. ओके. तो cranial nerve arise from the brain. That's why it is called as the cranial nerve. And the spinal nerve arise from the what? A spinal cord. Okay. ये spinal cord से arise होती है. Okay. और cranial nerve में 12 pairs होते हैं. और spinal nerve में कितने होते हैं बच्चों?
31 पेयर्स। ओके, तो ये डिफरेंस ध्यान में रखना है। बात 26 बच्चों, अब जनरली ये 2 मार्क्स 3 मार्क्स क्वेश्चन है। ओके, हाउ डज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर अकर एट नाइट इन द एब्सेंस ऑफ ट्रांसपिरेशन? तो जनरली रात के समय सन नहीं होने के वजह से ट्रांसपिरेशन नहीं होता है। ओके, तो एट द नाइट व्हाट हैपन, द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर टेक्स प्लेस बाय द व्हाट रूट प्रेशर। ओके, अब यहाँ पे आपको रूट प्रेशर को थोड़ा एक्सप्लेन करना पड़ेगा, इलैबोरेट करना पड़ेगा, क्योंकि बच्चों ये यहाँ पे इतना लिखेंगे तो थोड़ा सा रूट प्रेशर के बारे में भी लिखना पड़ेगा, क्योंकि वो कुछ डिस्टेंस तक ओके वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है। बाद में बी जो है, व्हाट रोल डज द बाइल जूस प्ले इन द डाइजेशन? तो बच्चों यहाँ पे इसके दो रोल हैं। मेन रोल तो इसका इमल्सिफिकेशन है ऑफ द व्हाट फैट्स, फैट्स को वो इमल्सिफाइड करता है, यानी जो कॉम्प्लेक्स है उसको सिंपल में कन्वर्ट करता है, यानी लार्जर जो फैट ग्लोब्यूल है उसको स्मॉलर में कन्वर्ट करता है। एट द सेम टाइम it also neutralize the acidic what food. ओके, ये भी पॉइंट यहां पे आना चाहिए। ओके बच्चों 29, अगेन द 3 मार्क्स क्वेश्चन, राइट वन कॉमन एंड वन फंक्शन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग टर्म। आपको एक कॉमन चीज बताना है, ओके, और उसका एक फंक्शन बताना है। तो बच्चों आर्टरीज एंड वेन्स, नो डाउट बोथ दे आर ब्लड वेसल्स, ये कॉमन है बिकॉज दे कैरी द व्हाट ब्लड, बट दोनों का फंक्शन अलग है। ऑल द आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड वेन्स कैरी विच ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ओके, अब गिल्स और लंग्स, तो बोथ आर द रेस्पिरेटरी ऑर्गन। गिल्स ये फिश में होता है और लंग्स ह्यूमन बींग्स में होते हैं। ओके, अब ये जो गिल्स है, ओके, तो देयर फंक्शंस, दे आर इंपॉर्टेंट फॉर द रेस्पिरेट, क्योंकि दे आर द रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ द aquatic organism and lungs are the terrestrial. Okay, here is glycogen and starch. तो बच्चों ग्लाइकोजन और स्टार्च दोनों कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, दे आर द कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि ग्लाइकोजन ह्यूमन बॉडी में होता है और स्टार्च प्लांट बॉडी में होता है। ओके, तो ग्लाइकोजन इज अ स्टोर्ड फूड इन द एनिमल and starch is the stored food in the what plant. अब इसी का और अगर देखेंगे तो वो बहुत इजी है। नेम द फॉलोइंग एंड राइट इट्स लोकेशन। ओके, ग्लैंड विच हैज बोथ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन कंपोनेंट। तो जो ग्लैंड है बच्चों, जो दोनों यानी वो हार्मोन्स भी सिक्रेट करता है, ओके, यानी वो एंडोक्राइन हो गया, और जब वो जूस सिक्रेट करेगा तो वो एक्सोक्राइन। तो अकेला पैनक्रियाज ही ऐसा है, क्योंकि पैनक्रियाज इंसुलिन भी सिक्रेट करता है और पैनक्रियाटिक जूस भी सिक्रेट करता है, और ये लेफ्ट साइड ऑफ क्या होता है, एब्डोमेन। ओके, समझ में, क्योंकि जहां हमारा ये पैनक्रियाज है राइट साइड में लीवर होता है और लेफ्ट साइड में इसका पोजीशन है। सेकंड, लार्जेस्ट रीजन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, नो डाउट बच्चों नाम तो स्मॉल इंटेस्टाइन है, ओके, बट ये लॉन्गेस्ट पार्ट है एलिमेंट्रिकल कैनाल का। ओके, समझ में, जिसका लेंथ 5 to 6 मीटर लॉन्ग होता है। ओके, एंड इट इज फाउंड इन द विच रीजन, बेली रीजन ऑफ द एब्डोमेन। ओके, एब्डोमेन का जो बेली रीजन होता है, ओके, वहां पे ये पाया जाता है। ओके, रीजन विच सिक्रेट HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो बच्चों हमको पता है कि स्टमक में गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस होता है और उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड सीक्रेट होता है, ओके, एज अ गैस्ट्रिक जूस। ओके, एंड इट इज प्रेजेंट
on the right hand side of the upper abdomen, which is a capital J shape organ. Okay. अब 33 देखिए बच्चों, ये 3 मार्क्स क्वेश्चन है. Improvement in our lifestyle has resulted in a greater amount of waste generation. तो जनरली हमारा जो लाइफस्टाइल है, तो आजकल हम यूज एंड थ्रो मटेरियल ज्यादा इस्तेमाल करते हैं. ओके, दैट इज अ डिस्पोजल आइटम. ओके, विच आर रिसाइकेबल. ओके, जो रिसाइकल हो सकता है. ओके, और डिस्पोजेबल मटेरियल्स जो है, ओके, इससे हम अपना लाइफस्टाइल से जो रिड्यूस कर सकते हैं विद द नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. क्योंकि जनरली जो डिस्पोजेबल आइटम्स है, उसमें हम पेपर्स के जो कप आते हैं, ओके, उसका इस्तेमाल करते हैं, तो ये बायोडिग्रेडेबल है. देन रीयूज ऑफ द प्लास्टिक कंटेनर. तो जनरली प्लास्टिक तो डिग्रेडेड नहीं होता है, उसको समय लगता है. तो जो प्लास्टिक के कंटेनर है, उसको हम रीयूज कर सकते हैं. यानी यहाँ पे 2 टेक्नोलॉजी है. वन इज अ रिसाइकल टेक्नोलॉजी एंड सेकंड वन द रीयूज टेक्नोलॉजी. ओके, तो दिस टू आर द सजेशन. ओके, तो वो हमारे लाइफस्टाइल से तो हम इसको इस्तेमाल, और ये ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं, इसको तो हम हमारे मन से इसको इलाबरेट कर सकते हैं. तो बच्चों, ये पहला वाला जो है यहाँ पे, ये 2 मार्क का है और ये 1 मार्क का है. ओके, अब इन द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म ऑफ द फूड चेन विच विल हैव द हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल केमिकल. तो बच्चों, ये फेनोमेना जो है वो है बायोमैग्निफिकेशन, नो डाउट, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन गेट इंक्रीजेस फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर ट्रॉपिक लेवल. तो यहां से इंसेक्ट में कम रहेगा. ओके, समझ में. तो पहले तो हमको इसको अरेंज करना पड़ेगा. तो सबसे पहले क्या आएगा बच्चों? ग्रास. ग्रास के बाद में क्या आएगा? इंसेक्ट. इंसेक्ट के बाद में कौन आएगा? कौन आएगा बच्चों? फ्रॉग. ओके, फ्रॉग के बाद में कौन आएगा? स्नेक. और लास्ट में कौन आएगा? हॉक. बिकॉज हॉक इज अ एपेक्स कंज्यूमर. तो सबसे ज्यादा जो कॉन्सेंट्रेशन रहेगा टॉक्सिक केमिकल, ये हॉक में पाया जाएगा, क्योंकि कम से इधर ज्यादा की तरफ होता है. ओके, क्वेश्चन नंबर 35 देखिए बच्चों. आइडेंटिफाई द फॉलोइंग मेथड एंड गिव वन एग्जाम्पल. ओके, तो ये देखेंगे तो सारे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है. ब्रेकिंग अप ऑफ पेरेंट इनटू सेवरल फ्रैगमेंट्स. बच्चों, ये फ्रैगमेंटेशन है. एग्जाम्पल, स्पायरोगैरा. ओके, division of organism into many cells. Okay, so this is a multiple feature. Example, plasmodium. Cut the part body and produce the new organism. 100% that is a regeneration. Okay, and example, planaria. Margin of leaf produces leaf plant. तो जनरली लीफ का मार्जिन वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है बच्चों, तो इट इज अ लीफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन. ओके, एग्जाम्पल, ब्रायोफाइलम. ओके, तो इस तरह से ये पहचानना है. एंड टिप ऑफ द प्लांट कल्चर इन आर्टिफिशियल मीडियम. तो जनरली बच्चों, हम जो टिप इस्तेमाल करते हैं, तो सम सेल हैज द एबिलिटी टू प्रोड्यूस द एंटायर प्लांट. दिस इज अ ex vivo growth of the plant body, that is a tissue culture. और इसका एग्जाम्पल बच्चों, कैरेट. ओके, तो ये टिश्यू कल्चर इज अ काइंड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ओके, इसका और बहुत इजी था. ओके, वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी था, एग्जाम्पल भी लिखना था. बट एक्सप्लेन व्हाट हैपेंस व्हेन एस्ट्रोजन रिलीजेस इन द फीमेल. तो एस्ट्रोजन इज अ फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल हार्मोन. तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर इसमें फीमेल में प्रोड्यूस होते हैं. ओके, समझ में. सेकंड, पोलन ग्रेन फॉल ऑन द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर. जैसे ही बच्चों पोलन ग्रेन ये स्टिग्मा पे आता है, इट अंडर को जर्मिनेट.
Okay, and to produce a two male gamete along with the pollen tube. Okay, then egg fuses with the sperm cell. अगर एग ये फ्यूज होता है स्पर्म के साथ, अंडरगो फर्टिलाइजेशन टू फॉर्म अ डिप्लॉयड जाइगोट. ओके, और उसी से एम्ब्रियो प्रोड्यूस होगा. ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ यूटरस स्टार्ट कॉन्ट्रैक्शन. ओके, जब यूटरस कॉन्ट्रैक्ट होता है बच्चों, तो क्या होगा? बेबी पुश आउटवर्ड, और उसके वजह से जो सर्विक्स है वो डायलेट होता है, और बेबी इजीली बाहर आ जाता है थ्रू वैजाइना. ओके, egg is not fertilized. हमको पता है बच्चों, if the egg is not fertilized, okay, the wall of the uterus start loosening. Okay, and this female undergo menstruation. Okay, that is a bleeding phase. Okay, so this is a easy one, और हर एक इसको 1-1 मार्क्स है बच्चों. अब यहाँ पे ये जो 38 है, दैट इज अ केस स्टडी है. अब यहाँ लिखा है ब्लू आई मैन हैज अ ब्राउन आई मदर. इन दिस द ब्लू कलर इज डोमिनेंट ओवर ब्राउन आई कलर. ओके, अब पहला क्वेश्चन पूछा है व्हाट आर द पॉसिबल जेनोटाइप ऑफ ब्लू आई मैन एंड ब्राउन आई मदर. तो बच्चों यहाँ पे गिवन जो है कि मदर का आई का कलर दिया है, और वो कौन सा है? ब्राउन. फादर के बारे में कुछ भी दिया नहीं, बट उसका जो बच्चा है उसका आंखों का कलर क्या है? ब्लू. ओके, यानी और यहाँ पे ब्लू कलर इज डोमिनेंट ओवर द ब्राउन कलर, यानी ये जो होगा ये स्मॉल बी स्मॉल बी, और ये क्या होगा? कैपिटल बी स्मॉल बी. और फादर का 100% कौन सा कलर होगा बच्चों? ब्लू. यानी यहाँ पे कैपिटल बी कैपिटल बी. तो इसका आंसर ऐसा आएगा कि ब्लू आई मैन हैज दिस जेनोटाइप and brown eye mother has a small b small b. अब सेकंड पूछा है what are the possible phenotype and genotype of his father. तो उसका फेनोटाइप क्या होगा? ब्लू आई, और जेनोटाइप होगा कैपिटल बी कैपिटल बी. ओके, अब बच्चों इसका सी जो देखेंगे, व्हाट इज द लॉ ऑफ डोमिनेंस. आपको लॉ ऑफ डोमिनेंस लिखना है. तो लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या बोलते हैं? व्हेन टू प्योर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर आर क्रॉस, only one character is appear, okay, and other is not. तो this is a law of what? Dominance. इस पे 1 मार्क मिलेगा. विथ वन एग्जाम्पल. तो बच्चों यहाँ पे ऐसा नहीं कि आप यही एग्जाम्पल ले सकते हो, आप यहाँ पे प्योर टॉल प्योर डॉफ वाला भी ले सकते हो. जहां पे टॉल अपीयर हो रहा है, तो टॉल इज अ डोमिनेंट. ओके, बट द डॉफ इज नॉट अपीयर, दैट्स व्हाई इट इज व्हाट? रेसेसिव. ओके, तो ये क्वेश्चन में यहाँ 1 मार्क मिलेगा और यहाँ 1 मार्क मिलेगा बच्चों. ओके, अब इसका और बहुत इजी था. ओके, गिव द डिफरेंस बिटवीन डोमिनेंट एंड रेसेसिव एलील. ओके, तो बच्चों यहाँ पे नो नीड टू ड्रॉ द डायग्राम, बट डोमिनेंट और रेसेसिव आपको पहचानना है. ओके, तो डोमिनेंट अपीयर इन द नेक्स्ट जनरेशन, F1 में दिखता है, बट रेसेसिव डू नॉट अपीयर. और डोमिनेंट is represented by which letter? Capital letter. And recessive represented by small letter. जैसे यहाँ पे this one is a dominant character. ओके, ये डोमिनेंट है बच्चों क्योंकि टॉल अपीयर हुआ है. ओके, देखो यहाँ पे इसको कैपिटल टी से रिप्रेजेंट किया है, और जो अपीयर नहीं होता दैट इज रेसेसिव, वो स्मॉल लेटर से अपीयर किया है. ओके, समझ में. तो दिस इज अ 38 वन. ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट अ व्हाट दैट इज अ बायोलॉजी. ओके,